Assalamu alaikum. My name is Mohammad Shahrukh and I welcome you all from the platform of KIPS CSS Network. Today we're going to be talking about a very important concept. This relates to your exam, which is the English Precisian Composition exam. Two exams in CSS are considered to be very daunting and very difficult. One of them is the essay and the other one is English Precisian Composition. Now in English Precisian Composition, as the name suggests, the Preci part, which is the main component of this exam, it holds incredible value. It is of utmost importance. In fact, the 20-mark question, which is question number 2 of your Precisian Composition exam, actually decides whether you will pass or fail this particular exam. It can either make or break your entire exam or CSS in general. Because if you screw up this particular question, which apparently comprises 20 marks, it actually holds much more weightage than that. So this particular component, which is called the Preci, will actually decide whether you will pass with flying colors or end up failing the exam altogether. So it is extremely important that we know the inside out, we know this particular question inside out, and we understand the core needs and the core factors that we need to take into consideration while attempting the question of Preci, which I repeat is essentially question number 2. After you're done with your MCQs, this is the first question that you encounter in your subjective part. So it is extremely important that we understand the main ingredients that need to be incorporated in order to formulate a good Preci. Preci होती क्या है? Preci basically ये होता है कि आपको एग्जाम में एक पैसेज दिया होता है और उसकी आपने सेंट्रल आइडियाज़ को प्रिजर्व करके एक समरी बनानी होती है. Now it is not as simple as it seems. It is not really that simple. 95% of the candidates actually end up failing this exam because they are unable to do justice with the Preci part. Let me tell you, Preci का जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन पढ़ के एग्जामिनर को ये अंदाज़ा हो जाता है कि एग्जाम के कैंडिडेट की इंग्लिश के ऊपर कितनी कमांड है. That one question essentially tells the examiner about the candidate's abilities, their caliber and their grip on English language. उसमें आपकी punctuation, उसमें आपके tenses, उसमें आपकी grammar, उसमें आपका structure, उसमें आपकी ideas, उसमें आपकी comprehension skills, उसमें आपकी summary making skills. Every single component is tested in that one particular question. So that sets the impression, that sets the expectation in the examiner's head about what will follow. So Preci का सवाल पढ़ के एग्जामिनर अपना माइंड बना लेता है कि बच्चे की इंग्लिश के हवाले से क्या औकात है और वो कहाँ स्टैंड कर रहा है. Hence, this might come as a surprise to you. We need to devote about 45 minutes to 1 hour in the actual exam for this particular question. Why? Because I'll tell you why we need to devote this much time. अगर आपके सारे का सारा एग्ज़ाम जिसमें आपके सेंटेंस करेक्शन है, कॉम्प्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन है और इस तरह की बाकी चीज़ें हैं, अगर आपका वो एग्ज़ाम का पार्ट बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन आपकी प्रेसी आप स्क्रू अप कर देते हैं और आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाते ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, ड्यू टू डेर्थ ऑफ टाइम या व्हाटसोएवर रीज़न आपने एंड के लिए छोड़ी हुई थी एंड यू weren't able to effectively do justice with that exam, that question, there is a high chance कि आप वो एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे. बिकॉज अगर आपने प्रेसी के साथ जस्टिस नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एग्ज़ाम के साथ जस्टिस कर रहे हैं. अच्छा, ऑन द फ्लिप साइड देन देर आर दोज कैंडिडेट्स जो अपनी प्रेसी को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, 45 मिनट से 1 घंटा देते हैं, बहुत अच्छी कंसाइज क्रिस्प किस्म की एक समरी बनाते हैं, प्रेसी बनाते हैं जिसमें उन्होंने एसेंशियल आइडियाज़ सारे प्रिजर्व किए हुए हैं, लेंथ को एडहेयर करते हैं और हर उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं जिनके बारे में मैं अभी बात करूँगा. और बाकी एग्ज़ाम उनका अगर एवरेज भी चला जाता है तो देर इज़ अ हाई चांस दैट दे विल स्कोर फेयरली वेल इन दी ओवरऑल एग्ज़ाम. याद रखें, CSS में 2 एग्ज़ाम्स सर्वाइवल के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें से एक, एज आई सेड, इज़ एसे एंड द अदर वन दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट राइट नाउ इज़ प्रेसी. और प्रेसी के एग्ज़ाम के अंदर
प्रेसी का जो सवाल है वो मेक या ब्रेक करता है आपका एग्ज़ाम, डिसाइड करेगा कि वो अब कैंडिडेट फेल करेगा या फिर वो पास करेगा, ठीक है. सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. आई विल present all of the main things that you need to understand and that you need to be wary of in order to ace this particular question or this particular exam. So starting off with the first thing, प्रेसी है क्या, प्रेसी की डेफिनेशन क्या है. प्रेसी कुछ लोगों के लिए वर्ड एलियन होता है और ज़िंदगी में उन्होंने पहली दफ़ा ये वर्ड सुना होता है. When I cleared my CSS, I hadn't heard of this word before, so it was a total new concept for me. अपेरेंटली हमने क्या करना है, एक पैसेज दिया होगा आपको किसी बुक से, आपको किसी एक्सर्प्ट उठा के दे देंगे, आपको कोई आर्टिकल उठा के दे देंगे, एक छोटा सा एक दो तीन कहीं से भी वो चीज़ें 2-3 पैराग्राफ्स उठा के दे देंगे, आपने उसकी एक समरी बना देनी है 1/3 लेंथ के अंदर. उस पर भी अभी मैं बात करूँगा. लेकिन उसके बावजूद 95% लोग 95% प्लस कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को फेल कर जाते हैं क्योंकि वो प्रेसी के साथ जस्टिस नहीं करते. आज we're going to be talking about a few important points that all of you need to carefully consider and understand in order to ace this particular question and save yourself from the chances of failure. एस्प्रेसी essentially होती क्या है, पहले तो ये बात करते हैं. एस्प्रेसी basically होती है एक concise, crisp, simple, lucid, easy to understand summary of the passage that has been presented to you, preserving its central ideas only. ये मैंने एक बड़ी मुख्तसर सी आपको डेफिनेशन दी है, लेकिन it is truly all encompassing and it covers all main dimensions and aspect about the Pressy exam, about the Pressy question. आपने एक सिंपल सादे अंदाज के अंदर क्रिस्प करके छोटे ब्रीफ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस के अंदर आपने उस पैसेज के सेंट्रल आइडियाज़ को प्रिजर्व करके अपना एक खुलासा प्रेजेंट करना है एग्जामिनर को. ठीक हो गया, ये तो हो गई बेसिक जेनेरिक सी अंडरस्टैंडिंग और डेफिनेशन. अब अक्सर कैंडिडेट्स का सवाल होता है कि जी हमें आइडियली एक प्रेसी की लेंथ कितनी लिखनी चाहिए. ऑल ऑफ यू माइट बी फेमिलियर कि जी हमें ओरिजिनल पैसेज से 1/3 लेंथ की प्रेसी बनानी है. लेकिन हियर इज अनदर प्रॉब्लम, हियर इज अनदर कैच. समटाइम्स एग्जामिनर आपके लिए एग्जैक्ट वर्ड्स स्पेसिफाई कर देता है. फॉर इंस्टेंस 2016-17 के अंदर, या आई कांट एग्जैक्टली रिकॉल, लेकिन उसने आपको वर्ड लिमिट स्पेसिफाई कर दी थी कि मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन 120 वर्ड्स. नाउ मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स डिड नॉट इवन रीड दैट स्टेटमेंट एंड दे एंडेड अप मेकिंग अ प्रेसी ऑफ 1/3 लेंथ विच वॉज बिगर देन 120 वर्ड्स. सो बात यह है कि हमने ये तो देखना है कि हम लोगों ने आइडियली हमारी प्रेसी की लेंथ 1/3 होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ें. अगर आप 2022 या 2023 या 2024 में अपेयर हो रहे हैं या हो गए हैं, आप मेक श्योर कीजिएगा बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग ऑफ योर प्रेसी राइटिंग आपने ये ज़रूर पढ़ना है कि स्टेटमेंट क्या मांग रही है, क्या एग्जामिनर ने वर्ड स्पेसिफाई तो नहीं कर दी है. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने प्रेसी को थर्ड पर्सन लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना होता है. थर्ड पर्सन लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपको यूजली एक जो पैसेज दिया होगा वो कहीं किसी की बुक से या एक ऑथर के किसी एक्सर्प्ट उठा के दे दिया होगा. उसमें ऑथर बता रहा होगा आई वेंट टू अ टाउन कॉल्ड XYZ विद माई फ्रेंड, वी हैड अ लॉट ऑफ फन. अब आपने खुद उस पैसेज का पार्ट नहीं बन जाना. इन अदर वर्ड्स, आप जो उस पैसेज की प्रेसी बनाओगे आपने उसको रिपोर्ट करना है. जैसे आप कोई चीज़ रिपोर्ट कर रहे हो, एज इफ आप वो चीज़ स्पेक्टेट कर रहे हो, आप ऑडियंस हो. यू हैव टू रिपोर्ट वट एवर इज बीइंग सेड. यू डू नॉट हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ द पैसेज इटसेल्फ बिकॉज यू आर नॉट द ऑथर. दैट मीन्स हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड पर्सन लैंग्वेज को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है. मिसाल के तौर पे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन लैंग्वेज क्या होती है? वी विल बी इग्नोरिंग एंड वी विल स्ट्रिक्टली बी नॉट यूजिंग वर्ड्स लाइक आई, यू, मी, वी, अस, माइन, आर्स. ये कुछ वर्ड्स की मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं जो स्ट्रिक्टली आपकी फर्स्ट और सेकंड पर्सन कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं. अगर आपने अपनी प्रेसी के अंदर कहीं भी इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया तो वो एक स्ट्रिक्ट नो गो जोन है और आप अपने लिए पेनल्टी खुद बेयर करेंगे. यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव. दीज वर्ड्स विल
मेक द एग्जामिनर पेनलाइज यू और आपको बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट बेयर करना पड़ेगा. हेंस हम लोगों ने थर्ड पर्सन लैंग्वेज के अंदर अपनी प्रेसी को रिपोर्ट करना है, बताना है. सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. थर्डली, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम लोग ऑथर के आइडियाज़ को बड़ा केयरफुली समझें और अंडरस्टैंड करें कि ऑथर एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है. उसमें हमने ऑथर के आइडियाज़ को एम्पलीफाई नहीं करना, हमने ऑथर के आइडियाज़ को डिस्टॉर्ट नहीं करना, उनको बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना, उनको गलत इंटरप्रेट नहीं करना, उनको कोई हम लोगों ने ख़राब नहीं करना. समटाइम्स हमें लगता है हम बात समझ गए हैं लेकिन द पैसेज कुछ और कह रहा होता है और हमें बात कुछ और समझ आ रही होती है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि ऑथर के आइडियाज़ को जो आपने सैंक्टिटी है उसको प्रिजर्व करना है. और इसके साथ साथ मेरा चौथा पॉइंट है, आपने कहीं भी अपना व्यू पॉइंट, अपना पर्सपेक्टिव या अपना कोई भी आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं करवाना अपनी प्रेसी के अंदर. सो मेक श्योर कि जब आप पैसेज की एक प्रेसी बना रहे हो, आपने मेक श्योर करना है कि कहीं आपका अपना आइडिया, आपकी थॉट, आपकी कोई पर्सपेक्टिव, आपका ओपिनियन या आपका बायस तो नहीं कहीं आ रहा, कहीं आप गलती से वो इंसर्ट तो नहीं कर रहे ऑथर के आइडियाज़ को बयान करते हुए. So these two important points which are extremely important. One, we should not distort, amplify or misunderstand the author's idea. Secondly, we should not incorporate or bring our own ideas into the passage, because ये क्या करेगा, आपके actual essence और actual meaning उसके passage को ख़राब करने की उसमें ले आएगा.